Hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello everyone, this is Yeah, Dr. yes, ma'am. Kumud. Audible, audible. Yeah, yes, ma'am. Okay, thank you. I welcome all the participants for today's webinar, which is on life skills as a tool. So today I would like to introduce a dynamic lady, Dr. Kumud Srivastava ma'am, who is the founder of Wellness Center, Lucknow. She is PhD in psychology. She has 20 years of experience in counseling field. She is a resource person of CBSE board and registered with NCS as a counselor. She is also a soft skill trainer. She has conducted many workshops in schools, colleges, corporates, and banks. So, before ma'am start the session, I would like to request all participants to please drop all your queries uh, in chat box. We will take all your questions one by one at last of the session. So now I request to Dr. Kumud ma'am to please start the session. Dr. Kumud ma'am, please. Hello everyone. Good evening everyone. I'm audible. Yes, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. You're audible. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, fine. So what do you want? Some lecture? Yes, please say. Even there is some sound, some beep is there. Divya? Ma'am, you are audible. Some beep is some beep is there, no? Some sound is there, some beep is anyways. Somebody is saying that I'm not audible. So please check the microphone. So what to do? Not audible, not audible. If people are saying not audible. Am I audible to you, Ashish? Yeah, I can hear you. Okay, fine, fine. It may be some problem with their end. Fine. So let's say some noise is there. Maybe somebody is. Anyways, we will start. Right? So again a session, again a webinar, again some lecture, again some guideline. No, not at all. So I have a very serious topic, a very important topic, and we will discuss it as a tool. एक टूल जो हमें कहीं ना कहीं से किस तरह से हेल्प करेगा एंड आई विल बी बाइलिंगुअल सो एवरीबॉडी इज फीलिंग वेरी मच ओपन एंड वेरी मच easy to discuss anything. Right? So let me start with some screen sharing also. So this is the topic for today. But I think I'll start something different. Not every time it is not important to discuss the definition, the concept, the uses, the benefits or harms and like this. Fine? Not your hair. Fine? It's not good to every time to give a lecture. And I'm not feeling very good to give a lecture. So just a story for you all. ये कहानी तो सबने सुनी होगी बचपन में कि एक प्यासा कौवा था गर्मी का मौसम था उसे पानी की तलाश थी और उसके बाद वो भटकता है और भटकते 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 उसको मिलता है एक पानी का मटका इस मटके में उसको क्या मिलता है इस मटके में उसको मिलता है एक ऐसी चीज
इसमें पानी तो है, लेकिन पानी बहुत नीचे है। अब क्या करेंगे? अब पानी को कैसे पाएंगे? कौन सा उपाय करेंगे? तो मालूम नहीं कौन सी बुद्धि थी कौवे के पास, जिसमें कि वो थोड़े से पेबल्स ले आए, थोड़े से पत्थर ले आए, और वो सारे पत्थर उसने उसमें डाल दिए, और उसके बाद में पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पी लिया और आराम से फुर्र हो गया। रिमेम्बर दैट स्टोरी? ये कहानी सबको याद होगी। आज का हमारा सेशन इसी कहानी पे डिपेंड करता है, और पूरे सेशन में इस कहानी को याद रखेंगे और उसी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन लास्ट में आई ask some questions to you people also. Okay, so what is the importance of life skill? How it is related to this story, and what we can learn with life skill? How it is important? What is the benefits? Is it a tool or not? We will discuss the whole. Fine. Ashish, sound is clear? So as we know, WHO has defined life skill that abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. रोज की जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते ही आते हैं, रोज की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती ही आती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट करें, लाइफ स्किल ये एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप करते हैं। Life skills are abilities that facilitate the physical, mental, and emotional well-being. फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, जब इसका कॉम्बिनेशन होता है और जब ये तीनों पॉइंट हेल्दी होते हैं, तभी कोई भी व्यक्ति कंप्लीट हेल्थ को प्राप्त करता है। कंप्लीट हेल्थ का मतलब केवल फिजिकली हेल्दी नहीं होना है, मेंटल और इमोशनली हेल्दी भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ स्किल हमें ये एबिलिटी डेवलप कराते हैं कि कैसे हम तीनों एस्पेक्ट में 100% हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ लाइफ स्किल्स हैं। WHO ने लाइफ स्किल्स को किस तरह से कैटेगराइज किया है? 5 तरह की थिंकिंग स्किल्स हैं, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड। 3 सोशल स्किल्स हैं और 2 इमोशनल है। One by one I'll discuss. If you have some query, please write your queries in chat box. We'll discuss. Self awareness, very simple. अपने आप को जानना, everybody knows, but फिर यहाँ नया क्या है? चलिए बात। Self-awareness refers to the conscious understanding of your thoughts, feelings, action, and interpersonal connection. Increased self-awareness can help you gain insight into the factors that influence your external world as well as internal beliefs, values, and morals. सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे की लाइफ। हर व्यक्ति को अलग तरीके से भूख लगती है। भूख एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हंगर इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट एवरीबॉडी फील्स एंड एवरीबॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे। मुझे मालूम है कि अगर मुझे लंबे समय तक भूखा रहना पड़ गया तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा और मेरे दूसरे काम प्रभावित हो जाएंगे। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस अबाउट मी। So I'll take care of this, I'll do accordingly, and I'll change the settings accordingly. Fine. Problem solving is another one. Everybody is solving the problem. This is the time of problem. And we used to discuss the problems. We rarely discuss the problem so that we are in problem. Anyways, problem solving एक natural, एक बहुत ही demanding skill है। सबको इसकी जरूरत होती है। प्रॉब्लम छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे ट्रायल एरर ना करें, इफेक्टिवली विद इन टाइम बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट अल्टरनेट के साथ में अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर लें, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। I'll discuss in later how we can develop these skills and how they are interrelated. Come on for the creative thing. People used to say, do some creative, do some creative, do some creative. What is the importance of this? Creativity. You know, thinking is in 2 types. One is critical thinking, another is creative. One thinking is thinking within the box, and another one is thinking beyond the box.
ऐसा कुछ सोच के कहा जाना जो हमने कभी सोचा ही नहीं, जो एक्सपीरियंस एरिया में था ही नहीं, नया सा। और कुछ ऐसा जो कि सारी जो चीजें वहां पे उपलब्ध है, जो जो हमारे पास में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वैल्यूज है, उसकी अकॉर्डिंगली के हिसाब से कुछ एनालाइज करना, कोई एक्सपीरियंस करना और उसके हिसाब से एक अच्छी सी बात, एक सही डिसीजन लेकर, कुछ अच्छा सोचकर, क्रिटिकली सोचकर, अप्स एंड डाउन्स को सोचकर और फिर डिसीजन लेकर परफॉर्म। क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल एज क्रिएटिव। For the fifth life skill related to the thinking skill, cognitive skill is decision. Decision make means ऐसा डिसीजन हो जो एवरी एस्पेक्ट में फिट, जो वैल्यूज को फुलफिल करे, जो बिलीव्स को फुलफिल करे और बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। हम अपनी रोज की जिंदगी में भी ये पांचों स्किल्स को यूज करते हैं। और अगर आप अपने आसपास का ही एक एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कोई ड्रेस परचेज करने जाते हैं, when you go to some grocery, when you go to complete grocery, हम वहाँ कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसमें ये पांचों स्किल्स होती है कि नहीं, थोड़ा सा सोच के। For the social skill, interpersonal relationship, it is very much obvious that all humans are social animals and we interact, we depends upon everybody, and interpersonal relationship makes people socially healthy. Emotional well-being is related to the interpersonal skill. एक दूसरे के साथ में हम कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं इन एवरी रिलेशन, कैसे हम रिलेशंस को अच्छा बनाते हैं, कैसे रिलेशंस को कंस्ट्रक्टिवली करते हैं, कैसे रिलेशन में कोई क्रियात्मकता होती है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ये परिवारों के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी बात ऐसी कहें, वर्बल और नॉन वर्बल, जो इफेक्टिव, ये कैसे आएगा, ये सारी लाइफ स्किल्स को जोड़, और ऐसी बात कहें जो टाइम और नीड के हिसाब से हेल्पफुल भी हो जाए, एप्रोप्रिएट भी हो जाए, कल्चरल और सिचुएशनल बैकग्राउंड में फिट भी। और ये सारे लोग यानी कि ऑल ह्यूमंस सोशल एनिमल्स, दे वांट टू लिव एवरीबॉडी, साथ में सबको रहना है, सबको इंटरेक्ट करना है, सबको बातचीत करनी है, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की डिपेंडेंसी, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन और इंटरशिप रिलेशनशिप होती ही होती है। इसलिए ये दोनों स्किल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। एंड द एम्पैथी इज द मोस्ट important skill which is related to humanity. किसी भी ह्यूमन में एम्पैथी का एबिलिटी का होना उसे बहुत अच्छा इंसान बना देती है, उसके अपने पर्सनल चीजों के लिए भी और दूसरों के लिए। एम्पैथी क्या होती है, एक सिंपल लाइन में बताना, दूसरे का जूता पहन के देखो, तकलीफ देता है या आराम देता है, अर्थात अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में डालो। Keep yourself in other situation in this situation. Will it be a very easy task? Will it be क्या था, हम दूसरे की सिचुएशन में जाके ही समझ सकते हैं कि अगले का ये रिस्पॉन्स, अगले का रिएक्शन, अगले का रिप्लाई क्या था। एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो सोशल एबिलिटीज में हाई बनाती है। इंटरपर्सनल रिलेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको सीखना है और अगर आपको ये दोनों एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी, वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज एम्पैथी। और कई बार ऐसा होता है कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती है, एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, वहाँ भी एक दूसरे की बात समझने में, समझने में, अकॉर्डिंगली सही एक्ट करने में, बेस्ट ऑल्टरनेट में जाने, एम्पैथी बहुत बड़ा टूल है जो हमको बहुत कम फॉर द इमोशनल एबिलिटी। इमोशनल स्किल्स में वो स्किल्स हैं मैनेजिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग and simultaneously coping with stress. Sometimes we feel good and sometimes we feel bad. Both kinds of feelings are normal. Yes, it is natural. People can have different feelings for the same situation. Exploring of one's feeling is important to manage the emotions. Emotions are very, very natural. हर ह्यूमन में इमोशंस होते हैं,
फिर सीखना क्या, समझना क्या, सीखना और समझना है how to manage your feelings, how to manage your emotions, where to expect, where not to expect. इमोशंस सब में होते हैं, उनका अराउजल हमारे कंट्रोल में है, उनका एग्जीबिशन हमारे कंट्रोल में है, उनका एक्सप्रेशन हमारे कंट्रोल में ये भी होता है कि किस इमोशंस को हम कितनी हाइट पे जाने दें ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति स्किल्स और आपका बिहेवियर ना हो जाए, आपका बिहेवियर उससे प्रभावित ना हो जाए। और अगर आप इमोशनली सोच के चलते हैं तो आपकी विजडम वीक पड़ जाती है और आपका डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को भी स्ट्रांगली एक्ट नहीं कर पाते। Coping with this. Now, if we discuss as a mental health professional, जब हम लोग किसी से भी कहीं भी डिस्कस करते हैं, so everybody is reporting that the person is in under stress. The very first important thing is to understand the meaning of stress. Stress means a force. And something is mounted, some thoughts, some opinions, some old experience, past experience, कोई पेन, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई चिंता, अगर वो माउंट हो जाती है, एक पहाड़ की तरह से जमा हो जाती है, वो दिमाग पे एक प्रेशर डालती है और वहाँ स्ट्रेस होता है। बट नाउअडेज every touch is a stress for people. You know, there are differences between touch, force, pain, and stress. And many times you will find that a slight or mild level of stress and is motivation also. And there is a very thin line between a natural motivation or a problem or a disorder. So coping with stress, we have to learn a very tough time, very complex time, very competitive time to keep your emotional balance high so that you can deal with your stress by yourself. It is about recognizing the source of stress in our lives. कहाँ से ये हमारे पास में आ रहा है stress? Recognizing how this affects you और हमें कितना प्रभावित कर रहा है and act in ways that help to control our level of stress. This may mean that we take action to reduce the source of the stress. For example, by making changes of our physical environment and lifestyle. अगर हम ये समझ पाएंगे कि स्ट्रेस हमें कहाँ से आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस कर सकते हैं और इट मे मीन लर्न टू हाउ टू रिलैक्स so that tension created by unavoidable stress do not give rise to health problems. आज की तारीख में बहुत सारी बीमारियां जो शारीरिक बीमारियां कहलाती हैं, they are psychosomatic and stress is playing a very positive role कि वो हर व्यक्ति को बीमार। For example, take diabetes. If it is not genetic, then more than 85%, or rather you can say 90% diabetes is due to stress. ऐसा नहीं है वही स्ट्रेस सबके लिए होता है, बट ये आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे है, कोपिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इमोशंस को कितना मैनेज कर पा रहे हैं और स्ट्रेस के साथ डील करना चाह रहे हैं. That gives you a new term to develop your psychological immunity system better. As we are discussing nowadays, especially in this crisis situation of corona, we are discussing about a physical immunity. Everybody is discussing about physical immunity, but we psychologists give more emphasis on mental problems, on mental health. So it's very much important to develop your psychological immunity, and by managing your stress and managing your emotion or control over your emotion or balancing your emotion, you can develop psychological immunity. ये जीवन है, इसमें परेशानियां आती ही हैं, कभी बड़ी कभी छोटी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और हर वक्त तो हम नए तरह से का समाधान नहीं हो सकते. So I'm discussing here that I'm providing this 10 life skills as a tool. ये एक औजार है, ये एक यंत्र है, ये एक टूल है, ये एक हेल्प है. ये आप अपने पास रखिए ताकि आप अपने जीवन की आने वाली सभी परेशानियों को इजीली डील कर सकें, सॉल्व कर सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें. स्वस्थ मीन्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल.
तो ये 10 टूल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. These are the integral part of life. Managing life skill is the ability to identify and express oneself in life. Life skill direct context empower young people to make informed choices. Life skills are psychosocial abilities that enable individuals to translate knowledge, attitude, and values regarding their concern into well-informed and healthy behaviors. Life skills are abilities to be developed in every individual to equip them to meet the challenges of life and optimize opportunities to live a healthier, happier, productive, and fulfilling. एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव काम हो, इसमें बहुत सारी प्रोडक्टिविटी हो. ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन लाइफ स्किल्स को यूज करें. Empowered with the skills, young people are able to take decisions based on logical process, what to do, why to do, and when to do. ये भी हमारे लिए इजी है कि अगर हम लाइफ स्किल्स को सीख लें. So just I come to you people. What we were discussing is clear to everybody. हेलो. अभी तक की जो बात हुई आपको क्लियर हो रही थी? वॉइस क्लियर है? मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, इज ट्रैकिंग. वॉइस इज नॉट क्लियर. What to do? I don't know. मैम यू कैन यूज हेडफोन्स यूज कर सकते. Yeah, I'm using आई it. थिंक यू आर यूजिंग. यस यस यस. I'm using it. It's cracking, not clear, not so clear. Okay. Screen share was clear? No ma'am, Screen screen is not showing. Not showing. अभी नहीं, पहले आपको मिला? Ma'am, screen is not showing if you are sharing. Not right है. इसके पहले पहले मैंने दिखाया था जो. थोड़ी देर I thought पहले a skipped. वो पहले था, थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन आ रहा था. Anybody from your side? Was it visible? No, You know, you there are aren't some visible. technical problems. My side, you are Picture visible, is ma'am. So life skills के बारे में 10 life skills I described. WHO has defined these life skills. ये एक tool है, एक यंत्र है, एक उपाय है जिसके साथ में आप रह के आराम से हेलो. yes ma'am, you are audible. सो ये 10 लाइफ स्किल्स हैं और ये सारी इंटर रिलेटेड. I started with some story. Remember? Yes. So what was that story? You know, वो एक स्टोरी थी थर्स्टी क्रो. आप जरा सा थोड़ा सा दिमाग Crow लगाइए. exhibited problem solving skill. Yes. Any other skill? कुछ और भी उसमें मिला? ये सारे 10 लगे. One is the problem solving. Hello everybody. I wish everybody please on your video so that I can see your faces. Man, you You're want to sitting say at something? home, ना? Yeah, I'm saying कि जो स्टोरी सुनाई थी उसमें कौन सी लाइफ स्किल्स आए थे? I think Aman wants to say something. Yes. One by one people can say or people can raise the hand. Switch on the cameras. Switch on the Ek- cameras so everybody is there. Ekta responded decision making. सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो तो एक दूसरे को देख पाएंगे
और अभी किसी ने मुझे बताया कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की लाइफ स्किल थी। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की लाइफ स्किल बताया है थर्स्टी क्रो की स्टोरी में। और कोई लाइफ स्किल भी थी? Self-awareness was also there in that story. Yes, very good. The crow knows that he is thirsty and he wants water. And I think almost all the life skills were used by that crow in that story. Almost. Almost it is all a- the skills. So it is very important to know that every time it is not necessary कि हम सारे 10 लाइफ स्किल हर सिचुएशन में हर दिन यूज करें। कभी कोई लाइफ स्किल जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कभी भी हो जाती है। और ये सारी लाइफ स्किल इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल लाइफ स्किल एज वेल एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है? जब हमारे अपने इमोशंस का हम पे कंट्रोल, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से में दूसरे से भी बोल पड़ेंगे, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मैनेजिंग इमोशन, मैनेजिंग बैलेंस इज द फर्स्ट थिंग। देन एम्पैथी, दूसरा किस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हम भी जाएंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करके समझ पाएंगे कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे है। एंड यू नो, एक छोटी सी और स्टोरी सुनाते, राइट? स्टोरी सुननी है? ये स्टोरी नहीं है, ये डेली का एक्सपीरियंस है सबका। I'm not able to see all the faces. Come on, people, show your faces. कैमरा खोलिए so that people can take their screenshots easily. ये हमारी अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, ये हमारे डेली के एक्सपीरियंसेस होते हैं। सपोज हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, सपोज जनवरी का महीना है, बहुत सर्दी है, बहुत फॉग है, और सुबह सुबह हमको अपने काम के लिए कहीं जाना है। अब वो काम के लिए कहाँ जाना है? कोई एक जगह पे सबकी मीटिंग रख दी गई है। मे बी बॉयज विजन ने किसी ऑफिस में हमको बुला लिया होगा सुबह सुबह, हम सब भाग के जा रहे होंगे, सर्दी है, जल्दी जाना है, और दिक्कत होती है। सर्दी में दिन भी छोटे हैं, काम भी करने में दिक्कत होती है, राइट? जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, इवन अपने डेली के काम में भी, हम रोज भी निकलते हैं, वहां भी हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, इसलिए हम एक दिन पहले थोड़ी सी तैयारियां भी करते हैं। मुझे मालूम है कि कितनी सर्दी में मुझे जाना है, तो मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मुझे मालूम है कि कितनी देर के लिए मुझे वहां रहना है, तो किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मुझे मालूम है मुझे तैयार होने में कितना समय लगेगा, तो हमें कितना समय निकाल के रखना है। और मुझे मालूम है कि मुझे पूरे दिन के लिए जाना है, तो मेरे पीछे से जो भी मुझे काम होंगे जरूरी, उनको कैसे निपटाया जाएगा, उसकी भी तैयारी हम करके रखें। एवरीबडी डू लाइक दिस। What I say is not applicable to everybody 100%, but everybody do like it. So what happened? हम क्या करते हैं? हम एक दिन पहले तैयारी करते हैं। हम उसके बाद में जो हमारे जिन पे हम डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हों, चाहे आपके वो मेड हों, आप उन पे डिपेंड करते हैं। हम एक दिन पहले उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो सर्दी तो बहुत है, लेकिन जाना जरूरी है, इसलिए थोड़ा जल्दी आना ही पड़ेगा। व्हाट इज दिस? सोचो। और उसके बाद एनी हाउ सुबह सुबह जब हम भागते तैयार होकर भागने लगते हैं, और फिर ये हमें पता चलता है कि हमें कन्वेंस नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ये दोनों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हम जाते हैं तो या तो वो चलेंगे नहीं, या तो सवारी नहीं भरेंगे, या तो फिर वो पंचर हो जाए। अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक जगह जमा हो जाए। और अब फिर हम लोग दिमाग दौड़ाते हैं
कि किसको कॉल करो, कौन रास्ते से जा रहा होगा, किसके साथ में लिफ्ट ले लो, कैसे अपने रास्ते को कंप्लीट कर लो। और साथ साथ ये भी याद रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें टेंशन नहीं लेना, हमें सारा दिन रहना है। अगर हम टेंशन अभी से ले लेंगे तो मेरा दिन खराब जाएगा। करते हैं ना ऐसा कुछ? अमन, डू लाइक दिस मैम वी डू। समटाइम। इनमें से जितनी भी चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज हम रोज की लाइफ में करते हैं। दीज आर द लाइफ स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अगर हमने किसी को बुलाया, आएगा नहीं। आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, now audible. Yes, now audible, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। तो वी वर देयर कि हम एक स्टोरी आप लोग को बता रहे थे कि उस स्टोरी में से आपको बता रहे थे कि कैसे आप जानिए कि हम रोज की लाइफ में हम कैसे कैसे वो काम करते हैं। राइट? ऐसा होता है ना, हम इन चीजों को यूज करते हैं ना। यस मैम। यही यही लाइफ स्किल है। अगर हम इन चीजों को रोज यूज करते हैं और इनकी चर्चा हुई हो रही है, तो नया क्या है? एक्सप्लोर योरसेल्फ। यू नो, परेशानियां होती हैं या आगे आने वाले समय में कोई कठिनाइयां होंगी। सबको हेल्दी लाइफ जीनी है, सबको कंस्ट्रक्टिव लाइफ जीनी है, और सबको ऐसी लाइफ जीनी है जिसका कोई मतलब निकल है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ तो होना चाहिए ना। सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आएगा। कैसे उस चीज को यूटिलाइज करो, कैसे उस पर काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? तो इसके लिए लाइफ स्किल एक टूल होता है। अगर हम इस चीज के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर इमोशंस, नॉट फॉर अदर्स, फॉर माई सेल्फ। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं है
इमोशंस बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो ना हम हेल्दी रह पाएंगे, ना हम कोई प्रॉपर एक्ट कर पाएंगे। जो सिचुएशन की डिमांड है, जो जो जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स को पढ़ना हो, चाहे ऑफिस में जॉब करना हो, चाहे हाउसवाइफ की लाइफ, हेल्थ तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ के साथ साथ में पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव बिहेवियर, और ऐसा बिहेवियर हो, ऐसा कम्युनिकेशन हो जो दूसरे के लिए भी फायदा करे और हमें भी वापस में कोई चोट ना। तो लाइफ स्किल्स ऐसे ही टूल है। तो जो मैंने रोज की लाइफ की आपकी स्टोरी बताई, वो हम सब देखते हैं। हम सब वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, हम सब फ्रूट मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं, वो हमसे कैसे बोलते हैं, कई बार हम उनसे उलझ जाते हैं। जी, आई गिव यू वन माय एग्जांपल। मुझे एक दुकान वाले ने बोला कि आपको लेना तो था नहीं, आप फालतू में आ गए। आई सेड यस, मेरे पास आज बहुत टाइम एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर हम उसको उसकी टोन में ही रिप्लाई करने देंगे तो मेरा इमोशनल बैलेंस कहाँ जाएगा। एंड आई नो अबाउट मी कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि मेरे पास में दूसरी और कौन सी जिम्मेदारी है, दूसरे और कौन से काम है, तो मुझे इमोशनल डिस्टर्ब नहीं होना है। तो इसलिए हम उसको दूसरी तरह से एक्ट करें। ऐसा होता है, हम सबकी लाइफ में होता है। आप और कहीं दूर जाकर इन चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। आपके ही आसपास में आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से, आपने देखा होगा आप सबके घरों में मेड आती है, और आप देखिए कि अगर वो पर्पसली एब्सेंट भी होती हैं तो भी वो कितनी इजीली, कितनी कमली आपके पास में एक ऐसा रीजन रखती है अपने एब्सेंट होने का कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें एक्सेप्टेड हो जाता है। वो अपनी बीमारी का कोई ऐसा बहाना बनाएंगे कि हमारे अंदर सिंपैथी आ जाती है, और हम इम्पैथी हमारे अंदर जा जाती है कि हाँ, तुम लोग को बहुत मुश्किल होता है जाने में। और जबकि जो मेट की कैटेगरी है, क्या वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, क्या वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, क्या वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, और वो हमारे पास है। और आज की हमारी इस मीटिंग में मुझे लग रहा है बहुत सारे यंग बच्चे भी हैं। तो एक एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इतना है ना, कोई भी सेंटेंस बोलिए, किसी से भी बात करिए, प्रॉपर नाउन यूज करिए, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए। हेल्दी रहना है हमें, तो हमें अपने इमोशंस और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। एंड देयर आर द वेज टू लर्न, देयर आर द वेज टू कंट्रोल दीज थिंग्स, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। So by this discussion, we are here to say that life skill really very very important thing। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्किल इन बातों को सीखा जाए। ये these are the integral part of life। Managing life skill is ability to identify and express oneself in life। Life skill in varied context empower young people to make informed choices। Life skills are psychosocial abilities that enable individuals to translate knowledge, attitude, and values regarding their concerns in well-informed and healthy behaviors। Life skills are ability developed in every situation to equip them. Equip them is important to meet the challenges of life and optimize opportunities to live a healthier, happier, productive, and fulfilling life. Empowered by skills, young people are able to take decisions based on logical process of what to do, why to do, how to do, and when. These four: what, why, how, and when, ये सबकी लाइफ में आते हैं। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सारे यंग पीपल को सीखनी है और बड़े लोग सीख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो जीवन जीने की कला है, ये तो जीवन जीने का कौशल है। जीवन तो सब जीते हैं, कोई कौशलता के साथ में, कोई स्किल के साथ में, और कोई ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ। ट्रायल एंड एरर मेथड में डिसीजंस गलत होते हैं, समय खराब होता है,
टाइम, एनर्जी, मनी तीनों वेस्ट होते हैं, अनहैप्पीनेस क्रिएट होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। इसलिए ट्रायल एंड एरर कम से कम करने पड़े, हिट हो जाए ऐसा फॉर्मूला हमें याद करना सीखना है। तो हिट हो जाए ऐसे फॉर्मूला के लिए लाइफ स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्किल्स के अलावा स्टूडेंट्स की लाइफ में ये सारे स्किल्स भी होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देते हैं। लाइफ स्किल्स help to build knowledge among people, bring out changes in attitude, and help to enhance the particular life. ये सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कोई चीज इम्पोर्टेंट होती है, कभी it is important that in a given situation one life skill may be predominant, but it requires a combination of right life skills to make a right. कौन सी लाइफ स्किल कहाँ पर यूज करेंगे ताकि हमारा डिसीजन एकदम राइट रहे और हमारी प्रॉब्लम बहुत कम हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हम लोग हैं, आप लोग को Now come to the question. If anybody has a question, किसी के पास में कुछ भी कहने और सुनने को हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स के एक जहाँ भी कोई चीज क्लैरिफाई ना हो चैट बॉक्स में देख लीजिए, कोई क्वेश्चंस हो आशीष आप क्वेश्चंस को रेज करिए और यहाँ से हम लोगों को डिस्कस करें। Because this is a workshop, this is not any lecture. I don't believe in any lecture. I don't want to give any lecture. कि आकर 4 लाइन का भाषण लेके चले गए तो कोई मजा नहीं आता। We are interacting with you people. ये सारा वॉइस विजन ने जो तैयारी करी इसका मतलब ही यही है कि हम सब मिलके बैठ के किसी चीज पे चर्चा ऐसी करें जिससे कुछ सीखने को भी मिले, तभी तो उसका मजा है। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन होता है। जब हम लोग स्कूल में होते हैं हम क्राफ्ट बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, हम बोलते हैं डू समथिंग क्रिएटिव। डू समथिंग क्रिएटिव मतलब कुछ नया करो। कम टू द पॉइंट। आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी में जाइए और उस समय की उस स्टोरी को अगर आप एनालाइज कीजिए तो सोचिए कि क्या कभी कोई सोच सकता था कि पेबल्स को नीचे डालेंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक क्रो पेबल्स नीचे डालेगा और पानी ऊपर उसको मिल जाएगा? नहीं। ये क्या थी? ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बियॉन्ड। ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता अरे ये भी हो जाए। एंड अगर सोच के देखो तो ये कितना इजी और इफेक्टिव स्टेप। ये इजी भी था और इसके साथ साथ में इफेक्टिव भी था क्योंकि काम बन गया था। और जो उसकी सबसे बड़ी नीड थी प्यास, जो कि नेचुरल है, वो भी फुलफिल हो गई उसकी नीड। दिस इज क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स। जो कुछ भी सामने है उसमें सलाह। कई बार क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसमें हम प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, सारे अप्स एंड डाउन्स को सोचते हैं और उनके हिसाब से उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट कभी कभी हम ऐसा कुछ सोच लेते हैं, ऐसा कुछ कर डालते हैं जो कभी सोचा ही नहीं था, एकदम नया सा है और हैप्पीनेस भी क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है, इमोशनल डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। क्रिएटिव आई थिंक कि जिसको क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग पूछना था things are clear. A very good question from somebody during this crisis period. How can we utilize these life skills? Yes, it is very, very important. Unfortunately, we all are in a pandemic situation. हम सब crisis की situation में इस समय हैं और हमारे पास में बहुत सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि people are under stress. परेशान है लोग। परेशान के साथ साथ में अनडिफाइंड इनसिक्योरिटी है, एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, एक बेचैनी चल रही है, एक डर भी है हमारे अंदर और चिंता भी है। चिंता हमको हमारे स्वास्थ्य की भी है और हमारे परिवार के लोगों की, राइट? तो अगर आपके पास में ये लाइफ स्किल्स हैं जिसमें आप इमोशंस को और स्ट्रेस को बैलेंस करना जानते हैं तो आप अपनी सेहत नहीं खराब करें।
Three B's are important here. Biology, belief and behavior. बायोलॉजी मीन्स कि जो आपकी बायोलॉजी है, जो आपका शरीर है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसमें क्रॉनिक इलनेस है, जो आपकी तकलीफें हैं, वो तो ऑलरेडी है, वो तो हमारे पास है। जो आपके हार्मोन्स का डेवलपमेंट है, जो आपका हेल्थ का लेवल है, वो तो अलग सबका अपना डिफरेंट होता है, और वो हमारे हाथ में नहीं, हमने अपने जीन्स खुद नहीं बनाए। लेकिन बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ, यस आई एम डूइंग राइट, यस आई एम टेकिंग ऑल प्रिकॉशन, आई एम फॉलोइंग ऑल द एडवाइजरी, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है ये पैंडेमिक सिचुएशन में, जिसको कि नाम दिया है SMS. नो एवरीबडी इज अवेयर विद SMS, सो दैट आई एम यूजिंग SMS. SMS का मतलब है सैनिटाइजिंग और सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस। तो SMS को जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो एक बिलीव, यस आई एम फॉलोइंग इट, तो मुझे दिक्कत नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर हो जाएगा। तो पैंडेमिक सिचुएशन में अपने अपने इमोशंस कंट्रोल रखो, अपने बैलेंस रखो, एंजाइटी को इतना हावी मत होने दो कि बीमारी हो। एंजाइटी उतनी ही अच्छी है जो मोटिवेशन का काम करे। और सबसे बड़ा, जो हमारे पास में एक, सबके पास में एक छोटा सा बढ़िया सा इजी सा मंत्र भी होता है, दैट गॉड गॉड हील्स एवरीथिंग। इस पर बिलीव करो, तो ये लाइफ स्किल्स इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इमोशन। When we discuss about emotion, people used to say वो बहुत इमोशनल, वो बहुत इमोशनल डज नॉट मीन कि वो इमोशनली कंट्रोल करना चाहता है। वो बहुत इमोशनल मीन्स दैट ही इज इमोशनल फूल, क्योंकि उसने अपनी सेहत दूसरे के कंट्रोल में दे दी। इमोशनल कंट्रोल सीखना, इमोशंस में बैलेंस सीखने का अर्थ होता है मैं मेरे इमोशंस को से कंट्रोल, मैं मेरे इमोशंस को दूसरों को गवर्न करने। ये बहुत कॉमन बात है, किसी ने कुछ कह दिया, माइंड में वर्ड्स, किसी ने कुछ कह दिया और हम पूरी रात नहीं सोए। ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। अगर आप सबके चेहरे सामने आए तो मैं बता भी सकती हूँ कि कितने लोगों के साथ होता है ऐसा। तो किसी ने कुछ कह दिया और हम पूरी रात नहीं सोए, ये बहुत हेल्दी पॉइंट नहीं। कहीं भी कभी लाइफ में ऐसी क्राइसिस सिचुएशन, जब घर में या किसी नियर डियर के डेथ हो, डेथ से बड़ा कोई क्राइसिस, डेथ की सिचुएशन में इमोशनल इम्बैलेंस होना नेचुरल, सबके साथ होता है। लेकिन हर बात के लिए अगर उतनी ही तीव्रता से इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, तो क्या आपकी थिंकिंग स्किल्स प्रॉपरली एक्ट करेंगी? क्या आप हेल्दी रह पाएंगे? सिचुएशन या आप जिस स्टेज में हैं, जो आपका रोल है, क्या आप अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाओगे? नहीं। तो हमको ये सीखना जरूरी हो जाता है कि हर वक्त अपने इमोशंस को इतना बड़ा ना होने दें, उसका अराउजल इतना हाई ना होने दें कि हमारे सारे काम को। I've seen the people कि जिनको इमोशनल इम्बैलेंस या जिनको स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन की स्टेज आ जाती है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती है, और इतनी एंजाइटी हाई हो जाती है, इतना इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है कि उनकी बॉडी में फेक पेन्स भी होते हैं और वो बीमारियों में उलझ के रह जाते हैं। ये तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सीखें कि इमोशंस को कैसे करना है, और मेरे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मैंने और जैसे माय हैंड हो। क्या कोई एक छोटा सा उपाय हो सकता है जो हमें इमोशंस के बैलेंस को सिखा दे अभी का अभी? कैन एनीबॉडी? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है?
हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, कोई बता सकता है कोई एक उपाय कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना हमें आ जाए, या का रास्ता हो, कंप्लीट ना भी हो? यस, somebody is unmuting. इसमें लाइफ में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। किसी भी situation को करना चाहिए तो कौन से इमोशंस Yes, ma'am. को, हाँ, इमोशंस के लिए कुछ एक छोटा सा आसान सा ले सकते हैं अभी? हेलो हेलो, यस कमन, हेलो I know who is responding. Yes, शोभलता. यस मैम, मैंने कहा कि अगर लाइफ में किसी भी सिचुएशंस को अगर हम एक्सेप्ट करना सीख जाए तो वहाँ पे हम अच्छे से कोप कर सकते हैं सिचुएशन के साथ। ठीक है, ये भी एक अच्छा रास्ता है कि एक्सेप्टेंस हो। लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि क्या हमारे पास में कोई उपाय है कि हम इमोशनल कंट्रोल करना सीखें? ऐसे क्विकली अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो हम मेडिटेशन या आंख बंद करके लंबी श्वास गहरी ले 2-3 बार, तो हम उस सिचुएशंस में खुद को थोड़ा कंफर्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम कंफर्टेबल होंगे तो हम अच्छे से कोई भी बात सोच समझ पाएंगे। यस मैम। और एक मैं अभी जो मैं कहना चाह रही थी वो ये रास्ता है आपके पास कि जो थॉट, जो परेशानी, जो विचार, यूजुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे यहाँ पर रखे रहते हैं, हम उनको इतनी जगह देते हैं यहाँ पर, ये भूल जाते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कौन सी मशीन है, इसकी कितनी वैल्यू है और इसकी कैपेसिटी। जो थॉट, जो परेशानियाँ, जो विचार आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो टॉपिक डायरी में लिख, आपकी ये मशीन भी हल्की हो जाएगी, आपकी इमोशंस हर वक्त हावी नहीं रहेंगे, आप स्ट्रेस की सिचुएशन में नहीं रहोगे, और जब आप लिख दोगे, when you use pen and paper for this, आपके लिए उसको एनालाइज करना इजी हो जाए। आप उसको इजीली एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद में सही डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, जो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिव थिंकिंग है वो एक्टिव हो जाएंगे। हेलो हेलो आशीष, शोभलता आगे कुछ कहना चाहेंगे आप? नो मैम, थैंक्स। आशीष, Yes, ma'am. अगर आप अपना क्या, हाँ, आज के टाइम में बहुत बड़ा इमोशन एक हमारे सबके पास में होता है एंगर, Yes. और हम लोग कई बार एंगर को कंट्रोल करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें भी सीखते और सिखाते हैं। अगर आपकी कैमरा ऑन हो तो एक छोटी सी 1 मिनट की एक्टिविटी आपके साथ यहाँ पे करें और एंगर मैनेजमेंट देखिए कितना बढ़िया हो जाता है। आप अगर कैमरा ऑन करें तो एक छोटी सी एक्टिविटी हमारे साथ करिए, 12 मिनट्स, करना मजा आएगा सामने सामने बातचीत का। एंगर कंट्रोल करना है तो दूर जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया लगता है वही इंटरेस्टेड, उपलब्ध हमारे साथ देखा चलेगी। देखिए, सबको रिक्वेस्ट कीजिए कि कैमरा तो ऑन करें एक बार। अच्छा लगेगा ना कि अब देखिए टेक्नोलॉजी का क्या जमाना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी डिस्टेंस में नहीं है। Hello everyone, please turn on your camera. मैम आई आस्क वन क्वेश्चन कि जैसे आपने कहा कि आप सब्जी लेने गई थी तो आपने रिप्लाई उन्हें बहुत सिंपली दिया, क्या आपको गुस्सा नहीं आया तब?
वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन। चेहरा तो दिखाइए, मजा आएगा बात करके। हेलो मैम। Anyway, हाँ, Please रूपांजलि turn कैमरा on ऑन करो। camera. ओके मैम। हेलो मैम। ये रूपांजलि, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, गुस्सा आया था बट यू नो एंगर इज अ नेचुरल इमोशन, सब में होता है, 6 मंथ के बच्चे में भी होता है, पर मेरे इमोशंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट, और मेरे इमोशंस इतने हल्के नहीं है जो सबके सामने एग्जिबिट हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह कि मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सेंटेंस नहीं अच्छा था, पर मेरा गुस्सा इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि मेरे पास वो एम्पैथी थी कि मुझे मालूम है जो सब्जी बेचने वाला है, जो मेड है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सोशल सिचुएशन, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और वो किस तरह से एक्ट करेगा, लेकिन मेरी ये हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट और मुझे गुस्सा करके इसको बेच। गुस्सा नेचुरल है, सबके अंदर आता है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जैसे बचपन में हम ये पढ़ते थे कि गर्म पानी भाप बन के उड़ जाता है गर्मी से, याद है ना, जैसे चाय बनती है और फिर पानी की मात्रा कम हो जाती है। हम ये जानते ही नहीं है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ एंगर। गुस्सा किया और थकान क्यों महसूस होती? तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी। मैं गुस्सा जरूर करूंगी, लेकिन उस बात पे करेंगे जिसका कोई रिजल्ट निकल। आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स कि जरूर गुस्सा करो उस सवाल पे जो तुमसे बनना, जरूर गुस्सा करो उस क्वेश्चन पे जो तुम्हें याद ना हो, चैलेंज कर दो उसको कि देखे कैसे नहीं याद हो। तो चैनलाइजिंग योर एनर्जीज एज वेल। जब हम चैनलाइजिंग की बात करते हैं, आजकल हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि चलो फिजिकल एक्सरसाइज घर में कर लेते हैं, करते हैं ना, क्योंकि चैनलाइजिंग योर एनर्जी। तो हम मेंटल एनर्जीज को क्यों नहीं चैनलाइज करते? एंगर इज अ नेचुरल इमोशन, सबके पास, चैनलाइज करो इसको, यूज करो उसको। कहीं कुछ गलत हो रहा हो, आई मीन कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहा हो, जरूर चलें वहाँ पर ये गुस्सा दिखाओ। लेकिन अगर हम लोग सब्जी मार्केट में, जो कि शायद रोज ऐसा ही कोई ना कोई बोलेगा, वो गलत बोलेगा, वो अजीब बिहेव करेगा, वहाँ भीड़ होगी, वहाँ अगर हम गुस्सा करने लगे तो मुझे मेंटल एनर्जी तो बचेगी ही नहीं। So I'm very clever and very economical in that way कि नहीं, हम वहाँ पर गुस्सा नहीं करें। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इतना सारा ये जो आयोजन किया गया है, हम लोग बैठे हुए हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आते ही। टेक्निकल फॉल्ट्स पे अगर हम गुस्सा करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा? क्योंकि ये हमारे बस में नहीं। लास्ट मंथ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ में एक इंटरनेशनल वेबिनार चल रहा था। इस टाइम में मैं बात कर रही थी, उस टाइम में कोई और स्क्रीन शेयर करने लगा, प्रेजेंटेशन मेरा बिगड़ गया। मैं एक दिन सेमिनार में बैठी हूँ, वहां पर मैं किस तरह का गुस्सा करूंगी, क्या फायदा होगा? तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना और इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। एक छोटी सी एक मिनट की एक्टिविटी है जो एंगर कंट्रोल के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग ये कहते हैं बहुत गुस्सा आ रहा है ना तो पानी पी लो, कई बार हम कहते हैं बहुत गुस्सा आ रहा है ना तो सिचुएशन से हट जाओ, कई बार कहते हैं कि गिनती गिनने लगो। ऐसे बहुत सारे उपाय हम सब करते भी हैं। किरण के दर्शन हो गए अभी, तो ऐसे सब उपाय करते ही रहते हैं। लेकिन अभी जो एक्टिविटी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप क्लासरूम में टीचर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है तो कोई उठ के थप्पड़ नहीं मार सकता टीचर को, ना सिचुएशन से भाग सकता है, ना वहाँ पानी मिलेगा, ना गिनती गिन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लेंगे, डू इट विद मी, ऐसे अपनी उंगलियों को फंसा लेंगे और ये उंगलियों को यहाँ दबाएंगे कि उंगली का प्रेशर हमारे इस जगह पे जाए, लाइक दिस। इस पोस्चर में आप बैठ जाइए, आप क्लास में, आप पब्लिक प्लेस में, आप ऑफिस में, कहीं भी ऐसे बैठ सकते हैं। और जब आपकी फिंगर्स का ये प्रेशर यहाँ जाएगा, मैम आपका पूरा दिख गुस्सा, नहीं रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, यस ठीक है।
इज इट ओके? ओके। आप इस तरह से उंगलियों का प्रेशर दें। ये उंगलियों का प्रेशर यहाँ पे जा रहा है। थंब भी Right. दबेगा क्या? हाँ, ये पोर्शन में सारा दबाव पड़ेगा। ये आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं, इवन आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो आप आराम से एग्जैक्टली आई एम सीइंग द सत्य प्रकाश हैंड, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? दिख रहा है आपको? यस संतोष, राइट। देखिए मैम, मैं कैमरा पर। हाँ ठीक है। ये एक बहुत सिंपल, संतोष को गुस्सा ज्यादा आता है क्या? बहुत ज्यादा। एनालाइज कर लो। ये मैम बहुत सिंपल बहुत कंट्रोल करती हूँ, नहीं हो पाता है। मुझे गलत बात एकदम भी समझ में नहीं आती है। मेरे फैमिली से भी इसीलिए से काफी इश्यूज हो जाते हैं। एक छोटी सी बात ये है संतोष, मैं बोलना चाहूंगी, उस गुस्से का क्या फायदा जो सोल्यूशन ना दे, या उस, लोग कहते हैं ना हम बहुत चिंता करते हैं, हमें सोचने की आदत है। अरे उस चिंता का क्या फायदा जो सोल्यूशन लाए? चिंता नहीं, चिंतन करो और गुस्से को एक हथियार के तौर पर यूज करो। लेकिन सब जगह एक ही हथियार तो नहीं लगता। अगर आप एक टूल बॉक्स लेते हैं तो उसमें कितने डिफरेंट तरह के टूल होते हैं। अगर आप स्क्रू ड्राइवर भी लेते हैं तो कितनी तरह के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। एक नीडल बॉक्स लेते हैं तो कितनी तरह के नीडल आते हैं। तो हर एक टूल हर जगह वैसे ही नहीं लगेगा। तो बेटर टू यूज द बेस्ट टूल, और बेस्ट टूल क्या है? लाइफ स्किल। नहीं मैम, इतना कुछ फैमिली के लिए करने के बाद भी अगर रेस्पॉन्स ना मिले, किसी का अगर ध्यान ना जाए, तो क्या करे इंसान? दे डोंट डिजर्व इट। कोई भी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन, क्या कोई भी बात मेरे लिए मेरी हेल्थ से इम्पोर्टेंट है? स्पेशली वो बात जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हो, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि उसमें बहुत सारे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपकी मतलब इवन बहुत सारे पार्ट्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं। पर क्या इस मशीन का कोई ट्रांसप्लांट हो सकता है? कोई रिप्लेसमेंट है? तो इसके इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसकी केयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी हमको केयर ही नहीं करनी है, प्रिकॉशंस ही नहीं लेने हैं, हमें इसमें साथ साथ में ये भी देखना है कि कैसे इसको बढ़ाएं और मजबूत बनाएं। हाउ कैन बी स्ट्रेंथन आवर मेंटल हेल्थ? तो इफ यू नहीं वांट टू देखिए मैम, स्ट्रेंथन, आदमी, देखिए एक बहू होने के नाते मैं जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। जिम्मेदारी तो मुझे निभानी पड़ेगी, पर कितने दिन तक, कितना आदमी सुनेगा, कितने दिन तक सुनता रहेगा? फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं, तो क्या सिर्फ फैमिली के लिए तो करना सिर्फ वो नहीं है ना, फिर अपना मेंटल भी पीस भी तो चाहिए ना। आपकी बात सही है। ऐसी बहुत बार सिचुएशन आती है जिनमें हमारा बस नहीं चल पाता है। चलो हम लोग उसको थोड़ा सा लेटर डिस्कस कर लेंगे, लाइफ को डिस्कस करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिएगा हमारे पास में, मैं आपको उसके लिए आपको अलग से टाइम देकर हमको discuss कर, ठीक है? ओके ओके। तो दिस टाइम लाइफ स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं, और लाइफ स्किल्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लाइफ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक ऐसा टूल चाहिए, हमें ऐसा फुल्ली इक्विप्ड होना है, हमारे पास सारे हथियार औजार हों कि जीवन में आगे आने वाली सारी परेशानियों को, वर्तमान परेशानी डील कर सकें। और डील तो सब लोग करते हैं, नो, सब काम करते हैं, जिसके पास भी जो जिम्मेदारियां होती हैं निभाते हैं, ठीक है?
सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चों के रिजल्ट आते हैं, अकॉर्डिंगली आते हैं, नहीं अच्छे आते, जैसे भी आते सब आते हैं। लेकिन एक इस तरह से काम करना कि हमारा काम भी हो जाए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, और साथ साथ में हमारी मेंटल हेल्थ भी बचे, हमारी हेल्थ का भी नुकसान ना हो। अगर हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, बट नेचुरल हमारी हेल्थ का नुकसान होता है, साथ साथ ये भी होता है कि हमारा एनवायरनमेंट भी खराब। अगर एनवायरनमेंट खराब जाता है तो उसके बाद के आगे के काम, उसके बाद के दूसरे Speak in English, please. We can't understand Hindi, ma'am. Hello. Yeah, I'm using English also. I'm bilingual all the time. Okay, I'm bilingual. I'm saying कि if we cannot control our emotion, that means कि we are disturbing our health as well as we are disturbing the environment also. Or if the environment is not positive, then the next step, they all going to spoil. आपके काम बिगड़ जाएंगे, आपके काम अच्छे नहीं हो पाएंगे. Whatever you have responsibility, what responsibility you are having, what you have to finish. If you are a student, you have to study. If you are doing some work, your workplace, तो आपका प्रोफाइल खराब होगा, आपका बिहेवियर खराब होगा, पर्सनालिटी खराब होगी. तो इमोशनल कंट्रोल, effective communication, managing emotions, all life skills are very big. Don't just revise all life skills once. 5 thinking life skills which are related to cognition that are कौन सी लाइफ स्किल है? जो थिंकिंग स्किल्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस, टू नो योरसेल्फ, टू नो ourselves about you, critical and creative thinking, two types of things. One is within the box, another one is beyond the box. एक ऐसी थिंकिंग जो सारी सिचुएशन को, सारे एस्पेक्ट्स को, सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करके, एनालाइज करके, और एक ऐसी थिंकिंग जो कहीं सोची भी ना थी, आउट ऑफ द बॉक्स, एक डिब्बा है उसके बाहर से जाकर सोच के लाए. Critical thinking as well as creative thinking. And by these two things, by two type of thinking, what we do is solve the problem with problem solving skill, and we take right decision with decision making skill. Particular decision making skill, best alternate, less trial and error, and finally keep the goal. Right? Somebody has asked how to develop critical thinking. जब बच्चे थे और हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसका जब हम सवाल करते थे, स्टेटमेंट वाले होते थे ना, when we have some in math statement form, what people say, what our teacher say, सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसी में हिंट मिलेगा. Remember, if you go to the all components and all aspects of your problem, जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं प्रॉब्लम के, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उनको सबको डिस्कस करें, उनको सबको एनालाइज करें, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को विचार करें, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप. कोई चीज सामने आई, तुरंत डिसीजन दिया, तुरंत एक्शन किया, तो गलत हो. और बाद में हम सोचते हैं थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए था, एक चीज तो छूट गई. So if we go and we can analyze all the components and all the aspects of every corner of the problem, that you will go to the best alternate for problem solving. You will take a right decision as well as your critical thinking ability to enhance. Creative thinking तभी possible है जब critical thinking high हो, डिसीजन मेकिंग करनी आती हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलप कर लें, और अपने इमोशंस को बैलेंस, तब ये दिमाग कुछ नया सा बढ़िया सा सोच के लाता है
और एक क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल, राइट। सोशल स्किल्स, बीइंग सोशल एनिमल। सोसाइटी में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू सोसाइटी और सोसाइटी टू सोसाइटी, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सोशल स्किल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप and effective communication. These 2 skills can be developed through empathy. Empathy is far different from sympathy. Empathy, place yourself in another's situation. Wear another's shoe in your own shoe. दूसरे का जूता पैर में पहन के देखो. And then you can understand what is the actual situation. Why the person has behaved like this? Why this man has said like this? जैसे रूपांजलि आपने पूछा सब्जी वाले ने ऐसा कुछ बोला, तो अगर एम्पैथी है हमारे पास में तो हम तो सोचते हैं कि उसकी जो सिचुएशन है, धूप में दिन भर बैठा हुआ तो थक तो गया ही होगा, तो बोलेगा तो ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो इफ आई हैव सम एम्पैथी, तो हमारा अपना बिहेवियर अच्छा हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है, हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं विद इन द फैमिली, विद द फैमिली, आपके वर्क प्लेस में भी, और आपकी मेंटल हेल्थ साउंड रहती है, क्योंकि वो बर्बाद नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है, खराब नहीं हो रही है, स्पॉइल नहीं हो रही है, हेल्दी हो रही है, राइट। एंड टू इमोशनल स्किल्स, कोपिंग विद स्ट्रेस। यू सी, आज का टाइम कैसा है, एक क्लास टेस्ट में भी, अगर क्लास के रेगुलर टेस्ट नंबर कम आने पर स्ट्रेस में आ जाते हैं। रोड पे हम चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है, गर्मी बहुत है, धूल बहुत है, भीड़ बहुत है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हॉर्न बजाने लगते हैं रेड लाइट में, मेरे बगल से कोई तेजी से कैसे निकल गया, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। Am I a weak person? Am I a weak person? जो नेचुरल सराउंडिंग है, जो हैपनिंग है, जैसी सिचुएशन है, हम जिस शहर में रहते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, गर्मी होगी ही, हम मई जून के महीने में गर्मी होगी, तो उसके लिए हम क्यों हो रहे हैं? तो इट मीन्स कि कि हम क्या इतने कमजोर हो गए हैं? हर टच पेन नहीं, हर टच फोर्स नहीं है, तो हर प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं। And it's better to solve the problem at the beginning and don't allow the problem to become a stress. कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बीमार हो, छोटा सा स्ट्रेस अपनी लाइफ में रखिए, कीप मोटिवेटिंग यू। मेरा बोर्ड का एग्जाम है, यस आई एम इन स्ट्रेस टू परफॉर्म वेल। मेरा बोर्ड का एग्जाम है और हम इतने स्ट्रेस में आ गए कि जो याद किया है वो भूल गए, क्या मिला? तो ask yourself, what is the meaning of stress for me? Am I a weak person? Have I developed the coping strategies? Find बहुत बार ऐसा होता है, it's very very painful for everybody कि फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा सुसाइड कर लेता है क्योंकि फाइनल ईयर में वो कोप अप नहीं करता। आई सीन द चिल्ड्रन कि अच्छा रिजल्ट आ गया, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए और उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, 11th क्लास में फेल हो जाते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, विथड्रॉल्स हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं, उनको मेडिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, वो दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी चले जाते हैं। So coping with stress, especially in the present situation, the crisis situation, pandemic, the outbreak है, कि कहाँ से कौन सी बीमारी आ गई कि हर व्यक्ति डरा हुआ, हर व्यक्ति परेशान है, वो स्टूडेंट हो तो परेशान है, कोई एग्जाम होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई जॉब ज्वाइन करनी है वो परेशान है कि जॉब कैसे ज्वाइन करेंगे, जॉब बचेगी नहीं बचेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से हैं, वल्नरेबल हैं, वो परेशान है कि मेरी हेल्थ का क्या होगा, ये कैसी बीमारी आ गई है,
जिनको बाहर निकलना पड़ता है वो परेशान है, उनके मन में इनसिक्योरिटी है, अनडिफाइंड इनसिक्योरिटी है कि हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वायरस को घर में लेके आ जाएंगे तो मेरा और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम। कुछ लोग ये सब सोच के परेशान है, जो कहीं नहीं जा रहे वो भी सोच के परेशान है, अगर मुझे क्वारंटाइन करना पड़ा तो मैं क्या करूँ। तो स्ट्रेस सिचुएशन है, यस, दिस पैंडेमिक सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, but believe in yourself that I'm following all the advice, I'm taking all the precaution, I'm keeping myself healthy, और हमारी इम्यूनिटी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी as I defined in two ways, physical immunity and psychological immunity also. And psychological immunity डेवलप करने के लिए एक छोटा सा शब्द है, that is resilience, flexibility, लचीलापन। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और फिजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी लो है, हर बात हमारे लिए स्ट्रेस हो जाती है तो हम बीमार रहने जाए, डायबिटीज जैसे बीमारियों का शिकार हो जाए तो पूरी लाइफ। एंड मैनेजिंग एज इमोशंस आर नेचुरल, सबके पास होते हैं, ह्यूमंस है तो इमोशंस होंगे, बट समझदार है तो इमोशंस को बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और एम्पैथी इसमें हेल्प करती है कि अगर एम्पैथी आएगी, कोई मेरे ऊपर क्यों चिल्ला पड़ा, एक बार एम्पैथेटिकल हो जाओ, अपने आप को सिचुएशन में जाओ और समझ में आएगा वो चिल्ला पड़ा। और मंत्रा उसके पीछे क्या है, गॉड हील। आज ये समय है, कल बेहतर होगा, तो हर बात को स्ट्रेस में नहीं लेना, ये पहला स्टेप होता है इस स्ट्रेस को डील करना। देन सेकेंड स्टेप होता है अपने आप को पहचानने का, प्रॉब्लम के सारे कंपोनेंट्स को देखने का और फिर स्ट्रेस से फाइट। राइट, तो वी डिस्कस्ड अबाउट 10 लाइफ स्किल्स एज अ टूल। ये सारी लाइफ स्किल्स जीवन में रोज हमेशा नहीं यूज होती हैं, इस सब स्किल्स को यहाँ पर डिस्कस करने का, स्पेशली यंग बच्चों के साथ में डिस्कस करने का एक और पर्पस था कि अब समझ में आ गया है कि कौन कौन सी लाइफ स्किल्स होती हैं और इनका क्या रोल है। नाउ असेस योरसेल्फ, अब अपने आप को देखो और समझो कि मेरे अंदर 10 लाइफ स्किल्स में सबको कितनी रेटिंग में दे, कौन सी वाली मेरी लाइफ स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं, कौन सी लाइफ स्किल में मुझे ज्यादा काम करके सीखना है, और कैसे मुझे 10 लाइफ स्किल्स को एक टूल की तरह अपने हाथ में मुट्ठी में बांध के चलना है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक औजारों का डिब्बा है, एक टूल बॉक्स है मेरे पास और हम उससे फाइट करें। So assess yourself, evaluate yourself that where you are standing with life skill. कौन सी लाइफ स्किल आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी नहीं। ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी करते हैं। क्यों मैं छोटी बात में स्ट्रेस में आ जाता हूँ, इट मींस कि my coping with stress life skill is weak, so I have to learn it. तो इनको we learn it, we can be able to solve every problem. जीवन है, परेशानियां हैं, और इन परेशानियों को अगर हम इस तरह से लें, जैसे सड़कों पे स्पीड ब्रेकर पहले एक बनते थे, फिर 2 बनते थे, अभी 10-10 वाले भी बनने लगे, पर गाड़ियां नहीं रुकती। और अगर हमें मालूम होता है कि आगे कौन सा स्पीड ब्रेकर आने वाला होता है, हम पहले से स्पीड स्लो कर देते हैं, हमें लास्ट मोमेंट पे तेजी वाला ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हम किसी नए साथी के साथ जा रहे होते हैं, उसको बता देते हैं देखो सामने वाला स्पीड ब्रेकर आएगा, राइट से बचा के निकाल लो, ये भी करते हैं। तो लाइफ स्किल्स 10 tools in a box to solve each and every problem, to work effectively and efficiently with your mental health. To be healthy is the more important motto of life for everybody. तो हेल्दी कैसे रहें अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, हेल्दी कैसे रहें अगर हम सोशली हेल्दी, and physical health, you all know, and it's a very good thing that people are aware about physical health. People are taking so many precautions for physical health. People are taking so many steps, क्या खाएं, कब खाएं, कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सी पीटी करें. Everybody is aware about physical health.
but many people are not about mental health and coping with stress and emotional balance. Two more important life skills are related to emotional mental health. So by keeping these tools in your hand, you can solve the problems, you can keep yourself healthy, you will be able to solve your problem, and you can reach the apex of your success, and you can do whatever you want, you can fulfill your objective, you can deal with problems, and you will be the happy person, and you will create happiness among your family members, with your family member, for society. You can be able to do something for you, for your family, for your nation, in society. So with this, I'll take a break for my voice. Too much lecture from my side. Now I'll take questions if anybody wants to say anything. Please. I'll see the chat box. Rashish, you please raise the questions. Yes, Brijesh, please say. मैडम हम फैमिली के गैदरिंग में बैठे हुए हैं, कोई रूम में डिस्कस कर रहे हैं सबके साथ, और हमको कोई ग्रुप में कोई बात करते हैं तो उस बात को हम सहमत नहीं है, तो हमको हठात अचानक गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली मेंबर कौन सा है, उसके वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट। पहली बात, फर्स्ट फैमिली मेंबर। आपको आपके झगड़े आपकी पत्नी से ज्यादा होते हैं क्या? नहीं, फैमिली में जैसे ग्रुप पे रहते हैं। I'm just joking. तो आप उस पॉइंट को जहां पर आपको, एक तो मैंने एक मुद्रा सिखाई थी जहां पर आपका तुरंत तुरंत गुस्सा शांत हो जाएगा। सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाइए। जैसे ही आप बैठते हैं, विदिन अ मिनट आपको उस तस्वीर का पूरे पहलू दिखने लगे, और रिएक्शन करने से पहले एक छोटी सी चीज होती है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिच। अगर ऑस्ट्रिच किसी ने देखा होगा तो देखा होगा कि वो छलांग लगा के चलता है, एक एक स्टेप को स्किप। We used to say कि adopt ostrich method, कि आप ये बोले कि इनका जवाब तो हम जरूर देंगे लेकिन 1 मिनट के बाद। Try to delay in your reply. When you try to delay in your reply, जब आप थोड़ा सा डिले करना चाहेंगे, ठीक है, अच्छा अभी जवाब देते हैं 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, और धीरे से 1 मिनट बाद तक हम, तो उससे 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो आपकी गुस्से की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है, और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि फिर हम और भी चीजें देखने, सुनने और समझने लग जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर, हमारा रिएक्शन कुछ ज्यादा बेहतर हो जाता है, संयत हो। ये चीज, और अगर ये भी ना याद रहे तो ये याद रखिएगा कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। Believe in my talks. धन्यवाद। और एक चीज ये भी, और जब आपकी ये सिचुएशन आएगी, जब आप 1 मिनट का कंट्रोल कर, तब आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे कौन सा ऐसा रीजन है जिससे उसका नेचुरल है, लेकिन उसको सही जगह में सही तरह से इसको। धन्यवाद। Anybody else? Yes, ma'am. I too have some questions. Sometimes Please in say. these situations, like जब हमारे साथ कुछ भी ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, तो जैसा कि आपने लाइफ स्किल्स यूज करने को बताया, तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या करना है, और इंस्टेंट रिएक्शन एक आ जाता है। लाइक यू सेड दैट स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हमें पता होता है स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, बट समटाइम्स दी स्पीड ब्रेकर्स हिट हार्ड। समटाइम्स हमारा व्हीकल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि कुछ हार्ड स्पीड ब्रेकर्स को झेल जाए, एंड वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कैसे अपने आप को पेशेंट रखें कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में सोच सकें? तो अमन कौन सी क्लास में होगी? सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर। कहाँ पढ़ रहे? डिस्टेंस एजुकेशन, मेरठ यूनिवर्सिटी। What is your name? अमन अरोड़ा।
एम एम गेम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है आगे करने का? आगे आई क्या जस्ट करना डोंट नो, चाहते हैं? आई डोंट दिस इज द नो। बेसिक रीजन, दिस इज द बेसिक रीजन कि आपको गुस्सा आ जाए। Yes, actually, it is the basic reason that I am frustrated because I don't know the path I'm on. कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं है। एंड नॉट ओनली मी, बहुत से लोग ऐसे होंगे, डेफिनेटली होंगे, और उन सब के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। तो उन सब के लिए और मेरे लिए ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? आज आज अभी तुरंत में तो आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप एक कागज पेन ले लो, एक छोटी सी टेबल बना लो, टेबल में ये लिख लो कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरी विशेस हैं। दूसरे कॉलम में लिख लो कि मैंने इसके लिए क्या किया। तीसरे कॉलम में ये होगा कि मुझे तो उसका रास्ता ही नहीं पता। ठीक है? एंड टेक माय नंबर फ्रॉम आशीष पंडे एंड कॉल मी टुमारो। श्योर मैम। आई विल गिव यू द वे। सिचुएशन में परेशान होने से अच्छा है सिचुएशन की टेबल बना के एनालाइज। वो बहुत इजी एनालिसिस होती बट मैम ये होता है ना कि जैसे आपने बताया कि टेबल बना के उसमें कैटेगराइज करें। अब किसी को ये भी नहीं पता कि उसकी कौन सी चीज ड्रीम्स में आएगी और कौन सी चीज विशेस में आएगी और कौन सी चीज के लिए वो प्रोफेशनल है। है। ठीक है? पहला स्टेप कभी परफेक्ट नहीं। यू विल राइट इन फर्स्ट टाइम यू विल राइट, वो परफेक्ट नहीं हो। एक्सेप्ट कल परफॉर्मेंस है कि मैं पहली बार लिखने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट सही नहीं हो, बट आई पर यूज माय मैम क्रिटिकल। सब सब तो यही सोचते हैं कि हर इंसान परफेक्ट होता है, पर यही कमी तो तो गलती सब है, में होती है। यही तो प्रॉब्लम है, तो यही सामने तो वाले को प्रॉब्लम इतना है। परफेक्ट क्यों समझा जाता है कि वो पूरी बात माने, उससे बात मनवाई जाए, जबरदस्ती बात मनवाई जाए, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। है मैम, मेरे फैमिली में होता है कि ये गलत ऐसा है, होता है ये मैम, गलत है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट समझ लेता है कि वो परफेक्ट है। ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को इम्परफेक्ट समझने लग जाते हैं हाँ, एक कि हम छोटी सी केपेबल बात, नहीं। एक अब तो छोटी सी बात ये भी होती है, मैम जब मैं हम तो लोग यही समझने लग गई कि मैं अब एकदम परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट समझती थी। देखिए बैलेंस कुछ बहुत प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट आ गई कि मैं अपने आप को भूल गई कि मैं कुछ हूँ। है। हाँ, संतोष हम लोग कल बात करेंगे, आशीष से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको नंबर दें और बात करेंगे, इसका रास्ता बनेगा। मुझे हम लोग स्कूल में होते हैं ना, हमारे मार्क्स खराब आते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि मार्क्स कम दिए। कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि जरूर मैंने गलत लिखा होगा इसलिए मुझे नंबर कम मिले। राइट? तो आई वुड लाइक टू आस्क आशीष कि आशीष आप कुछ बोलना चाहेंगे? Satya Prakash wants to ask something. आया प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आई हैव अ क्वेश्चन। मैं आपको देख नहीं पा रही। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे मैंने संतोष जी की बातें सुनी और अमन जी की बातें सुनी, तो मुझे एक क्वेश्चन है कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो पहलू होते हैं। किसी भी इमोशन को हमें लेना हो या कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी हो तो वहाँ पे हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे कि अमन जी की बातों में भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगा उनके लाइफ को लेके, और संतोष जी के भी फैमिली में मुझे लगा कि उनको भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम दूर करें? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सिचुएशन में दूर कर लें तो हमारा काफी कुछ सोल्यूशन हो सकता है, और हमारा जब डिसीजन मेकिंग सही होगा तो हमारा वो जो आगे का पाथ होगा वो भी सही होगा। तो ऑन द स्पॉट हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करते हैं? दैट इज माय एम्पैथी, क्वेश्चन। एम्पैथी और ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करते हैं ना, वी ऑलवेज से कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन।
उसके साथ में रिजोल्यूशन वर्ड तुरंत याद आ जाता है। तो और हम जो ह्यूमंस है ना, हमारे पास में एक बड़ी अच्छी चीज है, वो है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कोई भी कंफ्लिक्ट आया उसके लिए बातचीत करना, किससे बात करनी है और कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, इसको सोच के अगर हम बातचीत स्टार्ट करेंगे तो इजी होगा। कम्युनिकेशन लीड टू सॉल्यूशन। समाधान हमेशा बातचीत के रास्ते से ही बनता है। और कोई भी बात है वो हम अगर फर्स्ट लेवल पे ही सॉल्व कर ले सत्य प्रकाश, तो कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे आती ही नहीं। तो मैम अगर माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेके, तो अब यहाँ तो है पर्सन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट। अगर खुद के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको हम कैसे दूर करेंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए? जैसे मैंने अमन को बोला कि एक टेबल बना के लिख लो पहले। अगर हम खुद से लिख कि ऐसा होता है कि यूजुअली हम लोग सब लोग अपनी सारी इस तरह की प्रॉब्लम जो आप माइंड वाले कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक तरह की नॉट होती है। कोई पुराने एक्सपीरियंस से कोई बात मन में बैठ जाती है, नॉट हो जाती है। तो सबसे सबसे हर वक्त तो हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे इश्यू सबके सामने आए और हम खुद से सॉल्व कर लें, खुद से एनालिसिस कर लें। हम ये चाहते हैं। हम कैसे एनालिसिस सब चीजों की कर लें, क्योंकि हम सब तो जानते नहीं हैं। तो इसलिए उस सिचुएशन को, उन पॉइंट्स को अपने पास लिखना चाहिए। जब कागज कलम का इस्तेमाल करते हैं और हमारे सामने वो चीजें लिखी हुई एक टेबल के रूप में आती हैं, चाहे छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें, चाहे सर्कल्स बना लें, फिर हम उनको एरो के साथ में कनेक्ट कर लें, तब हमारी सिचुएशन की हम ज्यादा अच्छी एनालिसिस। हम हर वक्त तो मेंटल मैथ से सारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते ना, हर वक्त तो दिमाग में नहीं। फिर एक तरफ हम हर वक्त हर चीज के लिए पूरा दिमाग को खर्च नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम अपने दिमाग को हर वक्त क्यों खर्च करेंगे, क्यों थकाएंगे? कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं ना इसके लिए। यस मैम। यस, व्हाट्स नेक्स्ट? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे सत्य प्रकाश? मैम मेरा पीजी डिप्लोमा साइको काउंसलिंग से कंप्लीट हो चुका है। काउंसलिंग एंड गाइडेंस। सुन पा रही हैं? Yes, who wants to ask any question? Please do. Banerjee. Yes, Banerjee. Please. Please say. Not audible. You are not audible. बेटा मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? You can hear me, ma'am? Yeah, yeah. What is your name? What is your name? I am Shantoni Banerjee. Yeah, शांतनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? I am ma'am first year BSc. हाँ, बोलिए, पूछिए। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ सोचते हैं, मतलब वो जो चाहे वैसा, पर उन लोगों के पास ना हमारी इस काम के लिए कोई वैल्यू नहीं होती और इसीलिए इस छोटे छोटे बात पे हमें गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ क्या करें, सिचुएशन को कैसे handle करें? बेटा एक छोटी सी चीज है कि जैसे हमने ये सीख लिया है कि कौन से कपड़े इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कपड़े महंगे हैं, हमारी स्टेशनरी में कौन सी इम्पोर्टेंट है, किस चीज को किसी को दें किसी को ना दें, कौन सी संभाल के रखें। वैसे ही ये सीखना भी जरूरी है कि हर बात की वैल्यू अलग है। वैल्यू इम्पोर्टेंट और वैल्यू के हिसाब, जैसे मैंने भी पहले थोड़े दिन पहले बोला था ना कि किसी ने कुछ कहा या हर वक्त एक ही मात्रा में एक ही तीव्रता के साथ गुस्सा नहीं आएगा, एक हर वक्त हम बराबर से दुखी नहीं होंगे। वैसे ही जब कोई हमारी बात की वैल्यू नहीं देता तो हमें भी समझना चाहिए कि हर बात की वैल्यू डिफरेंट। अगर न्यूमेरिकल में देखो तो कोई 1% है, कोई 10% है, कोई 20% है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी इमोशनलिटी के कारण दूसरे का असेसमेंट गलत कर रहे हैं।
पर मैम हम जिम्मेदारियां तो नहीं छोड़ सकते ना। जिम्मेदारी मत छोड़िए, जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं हम। लेकिन सही जगह सही अपेक्षाएं भी तो करिए। हाँ वो तो है जरूर। तो ब्रिजेश मतलब यहाँ वांट टू पे आस्क छोटी समथिंग। छोटी बात पे गुस्सा आ जाते हैं, वही क्या बेटा? प्रॉब्लम है। मतलब इसी बात पे कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर रहे हैं, पर वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे, इसी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी। उसको ऐसे एग्जैक्टली सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले बात ये है कि जहाँ हम किसी के लिए जो कर रहे थे, तो क्या किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे थे? नो। तो काहे की तकलीफ? और दूसरी बात ये है कि अगर कंटिन्यूअसली कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कंटिन्यूअसली कोई इग्नोर कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व माई हेल्प। और बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा सामने आ गया है तो विड्रॉ योरसेल्फ। ओके मैम, डेफिनेटली। This you have to decide according to situation. Excuse me, ma'am. इसका कोई 2+2 4 फॉर्मूला तो होगा नहीं। Okay? तो धीरे धीरे जितना लाइफ स्किल्स स्किल्ड होते जाए, जितने होशियार होते जाएंगे। Rajesh, you want to say something? Yes, ma'am. Please. Please sir. मैडम, हेलो। राजेश, आप कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं? नहीं मैडम, मैं आसाम रहता हूँ। असम? What you हाँ do मैडम, there? बिजनेस करता हूँ सर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट। असम में कहाँ पे हैं? आसाम में सिलचर है। सिलचर? हाँ मैडम। Siljhar I visited. ओके मैम। Yes, please say. Ask. मैडम, हम नहीं चाहते हुए भी कभी बच्चों को भी अगर समझाना चाहते हैं तो फिर हम धीरे से बोलना चाहते हैं, पर हमारी वॉइस बढ़ जाती है और हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा हार्श हो जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? ये देखिए, ये एक बहुत दिनों की आदत से बन गई होगी। देखिए, आप सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या उलझन मेरे अंदर है, कौन सी इनसिक्योरिटी मेरे अंदर है, कौन सी एंजाइटी मेरे अंदर है, जिससे मेरे ही इमोशंस का कंट्रोल नहीं। You take 1 or 2 days for this. What we discussed today, just analyze all these points. Take 1 or 2 days and then call me. ओके मैम, थैंक यू। So Ashish, we are at the last lap of the today's meeting. It was a very interactive session. Yeah, it was an interactive session, but I think due to some technical glitches, we were not able to hear the voice clearly. So, but I hope next time हम लोग उस technical error को भी हम लोग rectify कर पाएंगे. And अगर सब लोग का एक बार कैमरा ऑन होता तो सबको देखते तो बहुत अच्छा लगता ना। So I think people are equipped with life skills now. People have come to know what are the life skills, how it is important, how they are interrelated, and what is the role of the life skill in our life. This is the toolbox. और जैसे हमको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, वैसे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन है, इतना बड़ा वायरस है, सब लोग के मन में डर है, इससे बच के रहना है। वैसे ही हमको अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को डेवलप करने के बारे में सोचना है,
This is a new concept for many people, but it is very, very important to develop yourself psychologically strong. तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम खुद से सक्षम। आई थिंक सारा लेक्चर हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। आशीष, now Yeah, over to okay. you. Yeah, thank you मैम, थैंक यू एवरीवन। एंड हम लोग इस सेशन को जो पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत सारे ऐसे थे जो इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग उसके लिए एक FB लाइव बहुत जल्दी करने वाले हैं सेम टॉपिक पे। तो आप सबको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 days हम लोग प्लान करके और इसको शेड्यूल करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। सो हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे और आप सबका फीडबैक अप्रिशिएटेड रहेगा। हम आपको फीडबैक लिंक फॉरवर्ड कर देंगे और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है रिलेटेड टू दिस वेबिनार, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसमें और इम्प्रोवाइज कर सकें। सो दैट्स इट फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। Yes, this is the beginning. Thank you, ma'am. Thank you so much for today's Bye-bye, session. everyone.